Thank you for joining us today. Today's session is very critical for Karachi, Pakistan's economic hub, because we are going to discuss its energy security amid evolving energy landscape. As you may know, K Electric in 2023 submitted its multi-year tariff and investment plan for the next 7 years till financial year 2030, basically a blueprint about how Karachi's energy provision will be ensured. Those who don't know, multi-year tariff is a regulatory framework used by utilities in the power sector to set revenue to a set period of 7 years. So K Electric had submitted its application uh, back in 2024 with NEPRA in 2023, however, received approval in 2025 in July, just a few months ago, after 2.5 years of deliberations by NEPRA and extensive public hearings and input from different stakeholders. However, in October 2025, NEPRA reopened this determination and reportedly after 20 to 25 hearings within a week against the previous determinations, gave revised decisions within 15 days, which has stirred a lot of confusion and debate. Therefore, we gather here today to discuss its implications on K Electric, its consumers, and Karachi at large. मेरा नाम सैयद अली Ehsan है. I am the Chief Development Officer at the Policy Research Institute of Market Economy, and I think थोड़ा सा just I apologize कि आप लोगों को सारों को थोड़ा सा जल्दी हमने जो है short notice पे बुलाया, but it seemed to us कि जो government है it was taking some very quick actions on its part, and so it makes sense that जिस time पे relevant policy debate जिंदा है उस टाइम पे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना चाहिए. सो वी आर जॉइंड हियर टुडे बाय सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनीस अलवी, former chairman FBR Syed Shabbar Zaidi, prominent industrialist and member steering committee Better Work Pakistan Harun Shamsi Sahab, and convener of the member of the advisory committee on energy at the Federal Chamber, engineer Zishan Ali. Thank you all for joining us. Ji. So, Bismillah ar-Rahman Rahim. Thank you very much for inviting, and I hope I am in a position to explain KE's position. So, again, I think the important thing is that we have to look at what happened in May and June when we got the first tariff, and I think it was after a successful negotiation between K Electric, NEPRA, and NEPRA was assisted by the Prime Minister's task force, and there were many meetings which took place. I think it is not a secret that it was not something which happened just by, I would say fluke or but without any consideration. I think if people go and look at the original determinations, you will see the kind of details that are there. And based on those discussions, the tariff was determined, and now we see a different tariff. Obviously, we in the past few weeks, when the first hearing started, we tried to explain this to everyone who matters. And again, please be cognizant of the fact that we are a listed company. So हम ये नहीं कर सकते कि हम फौरन जो है ना वो चीज़ें मीडिया में लाके देना शुरू कर दें. हमने 23 सितंबर को अपने अकाउंट्स अप्रूव किए थे आफ्टर डिले ऑफ ऑलमोस्ट पौने 2 साल बाद. ये अकाउंट्स जो हैं ये 2000 तकरीबन 10-11 महीने बाद ये अकाउंट्स 2024 के फाइनेंशियल्स अक्टूबर 2024 में आ जाने चाहिए थे, बट ये सितंबर में आए थे. एंड वी कैन नॉट जस्ट डिस्कस the implications in public. All these things are price sensitive. So we were engaged with the regulator and government in terms of explaining कि implications क्या होंगी. और again जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि ये जो टैरिफ अभी आया है, it poses a serious threat to KE को in terms of keeping it sustainable. We are still reviewing it. We are looking at all the options, what can be done. And hopefully, inshallah, we'll try to do our best, not only for K Electric, but for the people, जिनको हम बिजली सर्व करते हैं, which is not limited to individuals, industries,
और आपकी जितनी यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, वाटर पंपिंग, ये सारे डिपेंडेंट ऑन केई टू कीप द सिटी लिवेबल। एंड ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आज का जो नंबर है वो एक नंबर है। ये भी देखना पड़ेगा कि जब केई प्राइवेटाइज हुई थी, सो वेयर वर वी, एंड व्हाट is being done in the last 2-3 years, and अगर हम 20 साल देखते हैं, so what we achieved, और again it's a matter of public record which is confirmed by NAPRA के numbers हैं, हमारे financial statements हैं which were always audited by the top firms in Pakistan, whether it was EY, KPMG और PwC, जहाँ पे कि ये नज़र आता है कि हमारे 2007-8 में हमारे बहुत लॉसेस थे। फिर हमने जो भी किया, मतलब गोइंग इनटू मोर डिटेल्स वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे कोई 40-42% का एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस था, जो कि आज की तारीख में तकरीबन 20% पे खड़ा हुआ है। और इसके पीछे बड़ी मेहनत है, मैं ये समझता हूँ। और ये जाहिर बात है कि हमने समझाया भी है, एंड विल कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दिस। इन माय व्यू, जो टैरिफ अभी आया है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली, दिस इज नॉट अच्छा। द राइट टैरिफ। एंड आई एम माई कन्विक्शन इज, मैं बस फिर आपको हैंड ओवर कर दूंगा, माई कन्विक्शन इज दैट इंशाल्लाह, बिकॉज ऑफ आर एक्सप्लेनेशन एंड process, inshallah, we'll hopefully inshallah go back to the old tariff so that we can continue to serve the city. अच्छा मोनिस साहब, मुझे ये प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? आप लोगों ने एक जो इन्वेस्टमेंट प्लान इनिशियली जमा कराया था गवर्नमेंट के पास, 7 year इन्वेस्टमेंट प्लान था, दिस वाज based upon certain, I suppose, projections about how the development of that market in which you are operating will be unfolding. तो I believe initially जो है कराची इलेक्ट्रिक proposed a tariff rate of 44 रुपीस, जिसको कम करके अप्रूव किया था जुलाई के अंदर, एंड इट वाज व्हाट आई बिलीव 39 रुपीस और 37 रुपीस। लेकिन सो दिस ऑलरेडी द अप्रूवल वाज लोअर देन व्हाट यू रिक्वायर्ड, ऐसा ही है? ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी। तो अब जो है आई सपोज कि आफ्टर 2.5 साल की जो है प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के बाद, जब फाइनली आप लोगों के टैरिफ रेट्स लोअर लेवल के ऊपर जो है वो अप्रूव हुए थे, तो आई थिंक द कंपनी ऑलरेडी हैड टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स इन इट्स ओरिजिनल प्लान, और उसके बाद जो है यू यू गेट दिस रिडक्शन इन टैरिफ विच इज इवन लोअर देन योर प्रीवियस रेट, इज दैट करेक्ट? This is also absolutely correct. तो पिछले पिछले साल जो है यू गाइस वर एक्चुअली चार्जिंग 33 रुपीज पर यूनिट, एंड अभी जो है आफ्टर द लेटेस्ट एडजस्टमेंट फ्यू डेज अगो, तो अब जो है ये 32 रुपीज पर चली गई है। दैट्स तकरीबन, राइट। यू So, एब्सोल्यूट। so this is a major, major disruption, I think, as far as the planning of your organization is concerned, and I think उससे जुड़ी हुई फिर सारी जो है कराची की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट होगा। इन व्हाट वेज डू यू थिंक कि आप लोगों का काम कॉम्प्रोमाइज हो गया? देखिए, अगेन मैं फिर से ये कहूँगा कि इसमें जो एक और बहुत बड़ी, शायद लोगों को अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट दिस रिडक्शन फ्रॉम व्हाट वाज अप्रूव्ड इन मई एंड जून एंड व्हाट इज रिलीज नाउ, जो 7 रुपए का डिफरेंस है, इससे जो हमारे लोगों की बिलिंग है, कस्टमर की जो बिलिंग है वो कम होगी। ये बिल्कुल नहीं होगा, कस्टमर्स का रेट वही रहेगा। रादर देन दैट, उन्होंने एक जो इस टैरिफ में चेंज किया है, जिसे उन्होंने जाके 2023 का फ्यूल रेफरेंस भी चेंज कर दिया है। सो इफ इट इज इन द फील्ड एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन द फील्ड, तो हमको, कराची को, तकरीबन सिर्फ 2023 और 24, यानी 1 जुलाई 2023 टिल 30 जून 2024, तकरीबन कोई 25 से 28 अरब रुपए का फ्यूल सरचार्ज भी चार्ज करना पड़ेगा बैक डेट से। और अगेन उसकी, अगर ये टैरिफ रहता है तो हमें उसकी डिटर्मिनेशंस जो है वो, हमें पटिशन्स जमा करानी पड़ेगी और नेपरा उस पर फैसला करेगी। और फिर उसी तरह का कुछ सिमिलर अमाउंट 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक भी हमें बिल करना पड़ेगा। सो इन एडवर्टेंटली कराची के लोगों को हमें ये, मेरे ख्याल में करीब कोई 45 अरब रुपए 2 साल के अंदर बिल करके रिकवर करना पड़ेगा।
सो कराची को ये पता होना चाहिए कि असल में द बिकॉज ऑफ द चेंज द फ्यूल सरचार्ज, जो बेस रेट है उसको उन्होंने जो चेंज किया, उससे देयर विल बी एन एफसीए इम्प्लीकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, यस, हमारा टैरिफ 39 रुपीज़ था। एंड अगेन आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे लोग हैं, औरों को भी बात करनी होगी, लेकिन वो टैरिफ डिटर्मिनेशन इसी बात पे हुई थी कि देर इज़ अ कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड इन के ई सिस्टम, एंड इफ दैट कॉस्ट इज नॉट कॉम्पनसेटेड, देन वो के ई सस्टेनेबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि वो कॉस्ट क्या प्रूडेंट है या नहीं है, इस पर भी बहुत बहस हुई। और अगेन मैं फिर से ये कहूँगा कि उसका बहुत बड़ा एलिमेंट इस बात पे डिपेंडेंट है दैट केई हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। देखिए, हम कराची शहर को बिजली बंद नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी लाइबिलिटी है, ये हमें करना है। और बहुत सारे रीजंस हैं जिस पे बहुत बात हो सकती है, बट कराची की तकरीबन 900 कच्ची आबादियां मुल्क के किसी भी इलाके की कच्ची आबादियों से कम दुगनी है, अगर तिगनी नहीं है। सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स कराची में है। जो आदमी माइग्रेट करता है वो रास्ते में कहीं नहीं रुकता, सीधा। और एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये सिटी एक किसी टॉक शो में किसी ने कहा, गरीब परवर सिटी है। कराचीआइट शुड बी प्राउड ऑफ इट कि जी हम, वी प्रोवाइड home, we provide employment, we provide economic benefit to people who come here, and ऐसा ही होता है। मगर उसकी वजह से जो एक अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है, वी हैव टू सर्व दैट पॉपुलेशन। तो अगर मैं कराची को इस तरह से कहूँ कि मेरे जो ऐसे एरियाज हैं वो कराची के अंदर, अगर मैं कराची को 2100 केबल्स के जरिए जो 11,000 वोल्ट होते हैं सप्लाई करता हूँ, उसमें से सिर्फ 400-450 में हटा दूँ, जो कि इन इलाकों को सर्व करते हैं जहाँ पे कि लोगों की इनकम कम है, दे डोंट हैव प्रोपेंसिटी टू पे, एंड बिकॉज दे आर कंजेस्टेड, और वहाँ पे इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट इट। तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हम अगर बिजली काटे तो वो कटी रहे, हम कुंडे उतारें तो वो हटे रहें। सो उन इलाकों को अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरा जो लॉस और रिकवरी है, जो कि सबसे बड़े, आई वुड से एलिफेंट इन द रूम है, कि केई का टीएनडी लॉस 14% क्यों है, या केई की रिकवरी 92% क्यों है। अगर मैं इन इलाकों को हटा दूं तो मेरा लॉस जो है ना वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, और मेरी रिकवरी 98% पे पहुंच जाती है। अब क्या मैं इन इलाकों की बिजली, अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए, मेरी, आई होप सब मेरी बात समझने की कोशिश करें, कि अगर हमें इजाज़त दे दी जाए कि इन इलाकों की बिजली आप बंद कर दें, क्योंकि कई कोई फौज नहीं है, कई कोई पैरामिलिट्री नहीं है, कई कोई पुलिस नहीं है। हमारे पास लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म पहन के प्लास और हेलमेट और उनके साथ जाते हैं, वो कोई बंदूकें लेके नहीं जा सकते। और वो वहां पे जाके अगर बिजली नहीं काट सकते तो हम ये कहते हैं हमें वहाँ बिजली सप्लाई नहीं करती, मगर उसका मसला है कि अगर वहाँ हम नहीं करेंगे तो कोई और सप्लाई भी नहीं करेगा, एंड दैट विल क्रिएट, गॉड फॉरबिड, इफ वी ट्राई टू शट देम डाउन, शहर के अंदर मेहम होगा, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, सड़कें बंद हो सकती हैं। तो ये वी कांट डू दैट। सो देर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट सप्लाई। If that cost is not given to K Electric, then how will KE finance that cost? ये सवाल है जो कि हम सबसे कर रहे हैं, कि अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि ये हम कहीं से बोरो कर लेंगे, तो लेंडर्स जब अगर एक नेगेटिव ऑपरेशंस के साथ एक कंपनी है, उसको डेट कैसे देंगे? अगर स्पॉन्सर से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इस गैप को ब्रिज कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़ी सी, मैं इसको आई वुड से इट्स अ विशफुल थिंकिंग, कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये कॉस्ट है कंपनी की ऑपरेट करने की। मुझे, अगर मैं स्पॉन्सर हूं, मैं कहूँगा यहाँ बिजली मत बेचो, रादर देन कि बिजली बेचो नुकसान करो फिर वो हम भरें, तो बिजली मत बेचो। लेकिन बिजली बंद करना ऑप्शन नहीं है। जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है और जो पॉलिसी है, वो सब इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि आपको प्रूडेंट कॉस्ट देनी है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि आपने फरमाया, हम मांग रहे थे 44 रुपए, शायद अगर 44 दिया जाता तो ये कहा जाता कि आपने कई को इम्प्रूडेंट कॉस्ट दे दिए। लेकिन इसी वजह से कट लगा के हमारा रिटर्न जो है, जो 15% था उसे 14 कर दिया गया, ट्रांसमिशन में 15% था उसे 12 कर दिया गया, हमारे लॉसेस 14.5 पे ख़त्म हुए थे, उसे 13.9 से शुरू किया गया। there are many elements which were even part of the determinations which was issued in May and June, and we agreed with that because हमने कहा चले ठीक है यार, you cannot get everything, so हम ये, it is something which is not कि आप कहीं को कोई वो दे रहे हैं, आप
आप उन लोगों को, जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, जो कि ज़रा थोड़े से एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कराची, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू दोज एरियाज, एंड जी दैट कॉस्ट कैन नॉट बी funded by the sponsors. Unfortunately, this is our position. जी, I understand. I think we all get the picture. Well, what Prime Institute has been a proponent of privatization for a really long time. हम लोग जो है government को हमने जो है privatization policy solicit भी की. We try to explain some of the benefits of this kind of policy. And Karachi Electric को ऐसा देखा जाया करता था जैसे it is one of the success stories as far as privatization is concerned. It is the only integrated, vertically integrated utilities company, and effectively that makes it so कि इनके पास अपना distribution network जो है, it is a private disco as well. तो शबर जैदी साहब, आई विल कम टू यू नाउ. आप देख रहे हैं इकॉनमी को काफ़ी अरसे से बड़ा क्लोजली देखते हैं और नंबर्स को भी स्टडी करते हैं. अब ये एक नेप्रा ने जो है एक मूव लिया है. देर इज अ डिबेट इन दी पॉलिसी सर्कल्स एज वेल कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो competitive नहीं है, और शायद इस वजह से जो है इस तरह के मनूवर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मे बी इससे लोअर कर दी जाए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, और फिर जो है एक्सपोर्ट competitiveness के ऊपर कोई फायदा हो जाए. बट देन दे आर ऑफ कोर्स implications as far as foreign direct investment and future privatization process are also relevant. तो आप इसको किस तरह देखते हैं? Can you explain to us the implications of such a move at the larger level? अगर आप वो जो पूरा बास्केट है उसकी प्राइस उठाएं, तो वो प्राइस जो है, वो प्राइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है इन पाकिस्तान उससे ज्यादा है. अब इस पे एक डिफरेंशियल आ जाता है. ये डिफरेंशियल, इस पे कोई डिफरेंशियल की, अब यहाँ पर पाकिस्तान में दो कैटेगरी हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वो सारी ऑल डिस्कोज हैं, और एक केस है केई का. इन द केस ऑफ द केई, इन द केस ऑफ अदर डिस्कोज, डिफरेंशियल या सीपीपीएस से लोन की शक्ल में मिल जाता है. वो कंप्लीट होता है तो अगले 2 साल में केई फाइनेंशियली बैंक करप्ट हो जाएगा. तो सवाल ये है कि वो जो डिफरेंशियल है, अब उस डिफरेंशियल पे मैं और आप आर्गू कर सकते हैं डिफरेंशियल 2 रुपए नहीं, 3 रुपए है, 15 रुपए है, 10 रुपए, उस डिफरेंशियल पे मैं और आप. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट अच्छा, डिस्कोर्स, ये आप अगर मैं, क्योंकि बेसिकली अकाउंटेंट हूं, अब अगर ये टैरिफ आज रहता है तो अगले 2 साल में कई बैंक करप्ट हो जाएगी. वो तो और इसके इम्प्लिकेशन तो अपनी जगह पर आएंगे, मगर अदरवाइज कई जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी. उसका प्रॉफिट जो 4 बिलियन का है 2024 का, वो इस टैरिफ के साथ 81 बिलियन रुपीस नेगेटिव में चला जाएगा इसी साल. तो इसका मतलब है कि आपकी जो सारी प्राइवेटाइजेशन की जो सक्सेस स्टोरी जो गवर्नमेंट प्रीवियसली बताया करती थी. नहीं, मैं देखिए देखिए आप इसमें थोड़ा सा ना आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी. सक्सेस को छोड़ दें, अभी वर्ड सक्सेस को निकाल दें. अगर आपने सक्सेस, तो हम ये समझते हैं ना कि कोई बहुत स्टोरी, मतलब प्राइवेटाइजेशन के बारे में फिर आप सोचे भी नहीं. अगर आपने ये ये टैरिफ रखा तो पाकिस्तान की कोई डिस्को भी अगले 50 साल में प्राइवेटाइज नहीं हो सकती. ये मैं आपको बिल्कुल, आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साबित कर सकता हूं कि अगले 50 साल में पाकिस्तान में कभी कोई डिस्को प्राइवेटाइज नहीं होगी, क्योंकि आपने जो टैरिफ रखा हुआ है वो ओनली प्रिस्क्राइब्ड, जो पाकिस्तान की एक ओनली प्राइवेटाइज्ड डिस्को है, उसको भी 2 साल में बैंकरप्ट कर देगा. उसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है. अब ये जो बात समझी नहीं जा रही वो ये है कि आप ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की डिस्कोज हैं और जो केई है वो दोनों एक काइंड ऑफ एनिमल हैं. ये फाइनेंशियल सेक्टर में ये एक काइंड ऑफ एनिमल नहीं है. इसलिए मैंने, अगर आप चाहें तो आप जाकर पेस्को के अकाउंट खोलें, जो कि वन ऑफ द बेटर डिस्कोज है, और उसके आप देखें तो उसमें
उन्होंने बहुत बड़ी की कैपिटल इंडक्शन वो करते रहते हैं और सीपीपीए से पैसे लेते रहते हैं। तो ये एक्चुअली वही चीज है जो हमारा डिफरेंशियल टैरिफ में आया हुआ है। तो बुनियादी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप पहले ये मेंटली एग्री करें कि अगर आप मुझे आज यही को ये कहते हैं कि आप प्राइसेस कंज्यूमर से जो देखिए प्राइवेटाइज आप ये नहीं कर सकते। एक आदमी को आपने प्राइवेटाइज कर दिया और साथ में उसके हाथ भी बांध दिए। आप प्राइवेटाइज कर दे उसकी ठीक कोई बात नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कंज्यूमर से आप 10 रुपए लेंगे चाहे आपकी कॉस्ट 11 रुपए हो, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो आप जब प्राइवेटाइजेशन आपने की है तो जो एंटिटी जिसको प्राइवेटाइज किया है इसको उसको आपको सस्टेनेंस लेवल देना पड़ेगा। अब केई ने जिस तरह कहा, मोदिस ने केई ने कहा कि हम 44 रुपए के ऊपर सस्टेनेंस के ऊपर है या हमारी आइडियल पोजीशन 44 रुपए है। उन्होंने 44 को कम करके 39 रुपीज कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें इससे ज्यादा हम समझते हैं, आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब 39 को जो आपने 32 किया है तो वो 32 करने के बाद का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप अगले 2 साल में अपनी कंपनी बंद करके वापस चले जाए। अब सवाल ये है जो मेरा इस पे अगला सवाल है कि अगर केई जो आप कह रहे हैं कि 7 रुपए आपने कम कर दिए केई के, तो टेक्निकली आपने कराची के कंज्यूमर को ये कहा है कि आपकी जो प्राइवेटाइज एंटिटी है ये अगले 2 साल में बंद होने जा रही है, क्योंकि ये चल नहीं सकती और इसको 81 बिलियन का लॉस आएगा 24 में, जो कि साल क्लोज हो चुका है। देखिए 24 का साल क्लोज हो चुका है इस वक्त। मुझे 24 के साल में 81 होगा अगले साल में। तो प्राइवेटाइज्ड एंटिटी को बेंचमार्क करना एक गवर्नमेंट ओन डिस्को के साथ सरासर जाती है। अब आगे चलें, इसमें एक अगला सवाल है। अब आपने तो एक अगले स्टेप पे चले गए, आपने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की आपने, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप उस आदमी को, जो आदमी आया है उसको आप इतना रिटर्न दे रहे हो कि उसको डॉलर में कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है जी, उसको डॉलर में रिटर्न मिले। आपने ये नया टैरिफ देखा हो, इस टैरिफ के अंदर उन्होंने हमारी टैरिफ को रुपी बेस कर दिया है। जबकि आपको ये बात शायद अगर आप बैलेंस शीट आपकी केई को देखें तो केई की बैलेंस शीट में 720 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि 66% ऑफ केई है, ठीक है। तो आप मुझे ये समझा दें कि 720 बिलियन डॉलर के ऊपर अगर आप रुपी बेस रिटर्न दोगे तो वो जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है उसको क्या रिटर्न मिलेगा। ये बात इसलिए ये प्रिंसिपली ये इक्विटी का जो आपने टैक्सेशन किया है ये गलत है। और इस टैरिफ के ऊपर जो आपने टैरिफ आज डिटरमिन किया है, अगर ये नेशनल टैरिफ बनता है तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पावर सेक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब आप इसको भूल जाएं कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूटिलिटी सेक्टर में आ सकती है। तो ये बुनियादी जो गलती है वो ये है कि हमने एक गलत एजम्पशन पे काम करना शुरू कर दिया है। तीसरी बात जो बुनियादी बात है इसमें वो ये है कि जब हम नेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के जो भी टैरिफ है वो एक लेवल पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है जी, फेयर एनफ आपने कर दिया। मगर दूसरी बात आप ये दूसरा मुनिस ने कहा कि अगर आप मुझे प्राइवेटाइज करते हैं तो मुझे ये भी तो राइट देना कि जहां पे कुंडा लगा है, जहां मेरा फीडर आगे काउंटर नहीं है, उसको मैं बंद कर सकूं। तो क्या मोदिस के पास ये राइट है कि वो उन इलाकों की बिजली बंद कर दे जहां पे वो समझता है कि वहां पे मुझे रिकवरी नहीं हो रही, क्योंकि मोदिस भी एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, उसको कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं मोदिस को कि वो 455 फीडर पर बिजली दे और उसमें रिकवरी भी नहीं हो या रिकवरी डिले हो और लॉसेस हो और गवर्नमेंट उस 455 फीडर की कोई कॉस्ट नहीं दे, वो जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है रिकवरी की या लॉसेस की, वो मोनिस को नहीं दे और मोनिस एक प्राइवेटाइज एंटिटी चलाता रहे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2100 फीडर जो है केई के, उनमें से 455 फीडर जो केई के हैं वो स्लम्स में हैं।
अब आप मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान को भी जानता हूँ, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, आप मुझे बताएं कि लाहौर में कितने स्लम्स हैं और कराची में कितने स्लम्स हैं। लाहौर को आप बताएं कि लाहौर में कितनी जरा बस यही एक बात सिर्फ, बिजली भी नहीं बंद कर सकता, और अगर मुझे कहीं लॉस हो रहा है तो मुझे इस बात की इजाजत भी नहीं है कि मैं खुद से प्राइस इंक्रीज कर दूं। मतलब अगर यस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इजाजत हो तो मैं 4-5 रुपए कीमत बढ़ाऊं और मैं चलाता रहूं कंपनी को, तो ना मैं कीमत बढ़ा सकता हूँ ना मुझे कीमत मिल रही है, तो बस, और ना बिजली बंद कर सकता, बस ये ना बोलना है। आपने तो उस बंदे को लाके उसके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, और आपने कहा कि जनाब आप ना बिजली बंद कर सकते हैं ना प्राइस बढ़ा सकते हैं और बिजली देना कंपलसरी है। तो ये जो बुनियादी आपने ये बुनियादी चीज जो है, ये मेरा जाती ख्याल है, मेरा मैं मुनिस को यही मेरा तो ये समझता मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये रिवीजन की है उनकी अंडरस्टैंडिंग में गलती है इस बुनियादी कॉन्सेप्ट के। और मैं इसको फायदी नहीं समझता, बल्कि ये समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ समझने में एरर आ गई है। मैं तो इसको ये इतना सीरियस मैटर समझा जाए कि जो उनको बुनियादी चीजों के बारे में इल्म नहीं है, या उसको वो टोटली गलत समझते हैं, उन्होंने चीज को समझा ही नहीं है। इस और बाकी मुझे बता दीजिए, मैं और बात भी कर सकता हूँ, और कोई चीज मुझसे आपको चाहिए तो मुझे बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे 10 मिनट में एक जगह एक मीटिंग में जाना है। आप थैंक यू जैदी साहब। आपने क्या जो पिक्चर पेंट की है, दिस इज कोई अ और सवाल वेरी, करना है तो बता सकते हैं। जी जी, जो आपने पिक्चर पेंट की है ये काफी जो है आई थिंक कंसर्निंग पिक्चर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इम्प्लीकेशंस इस कंट्री के अंदर अभी इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ इट इज। एक बात को और समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर गवर्नमेंट फिस्कल एडजस्टमेंट में ये समझती है कि वो सब्सिडी की फिगर कम कम करके दिखा देगी, और वो चीजों को इस तरह से, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसको कैमोफ्लेज कर लेगी, तो ये समझ लें कि एक टेम्परेरी फेज है, और हम रियलिटी से, हम जिसे कहते हैं हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं। ये रियलिटी है कि वो डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है। अब उस डिफरेंशियल को आप कैसे कवर करेंगे, कहाँ से पैसे निकालेंगे, कब किधर डालेंगे, वो आपकी फिस्कल मैनेजमेंट है, जो एक अलग सब्जेक्ट है, जो आप प्राइम वाले करते रहते हैं रेगुलर बात। मगर अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान में प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो बंदा है उसको उसकी पूरी कॉस्ट की इदराक नहीं है, और वो गलत फिगर्स पे काम कर रहा है। और ये बात अगर सामने आ जाएगी ओवरऑल बेसिस पर, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मसला खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डिस्कोर्स को कंपेयर करेंगे तो इवन द बेस्ट डिस्कोर्स लाइक आईएसको, लाइक फैसलाबाद, लाइक लाहौर, उनकी आप बैलेंस शीट उठा ले, आपको पता है कि इस फेस्को की बैलेंस शीट का कैपिटल कितना है? 10,000। मैंने जो लास्ट बैलेंस शीट, उसमें 10,000 कैपिटल है और 41 बिलियन रुपीस और 41 बिलियन की रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट पड़ी हुई है। तो सर आप बैलेंस शीटें उठाएं, तो आप फेस्को, अगर मुझे आज आप कहते हैं कि फेस्को को मैं ले लूं और 91 बिलियन रुपीस का अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो फिर आप, इसका मतलब है आप ये लोगों को कह रहे हो कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन की कहानी जो है वो सिर्फ किताबों में है, ये हमें करनी नहीं है, ये हमें करनी नहीं है। तो जब आप कहते हैं ना कि सक्सेस स्टोरी, मैं कहता हूँ सक्सेस का वर्ड निकाल दे, स्टोरी बंद, लफ्ज स्टोरी खत्म कर दे, दिस इज फिनिश्ड, दिस इज नाउ नॉट अ क्वेश्चन। इस 32 रुपए टैरिफ के साथ आपने पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन ऑफ दी इसको को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, अगर ये सही है तो। प्राइम ने थैंक यू वेरी मच सर। प्रीवियसली भी, थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग अस। प्राइम ने पहले भी इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स की हैं एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग इज कंसर्न्ड, एंड आई थिंक कि ये मार्केट जो है वो तब तक प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर एक बात सकती। और कहना चाहता हूँ, देखिए जी जरूर। एक बात ये, सॉरी, एक बात और, देखिए हमारा मसला ये है कि हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे, बल्कि हम आइडियलिस्टिक चीजों को देखते हुए कि दुनिया में गैस प्राइस क्या है, दुनिया में एलसीडी प्राइस क्या है, ये है वो है, उस बेसिस पर काम कर रहे हैं। मगर अगर हम जमीन पे अपने पाँव को कायम रखें और देखें कि हमारी ग्राउंड रियलिटी बिजली के बारे में क्या है, तो फिर हमें ये एरर जो हमने अभी की है होगी, और ये लोगों को समझ आ जाएगी। और मेरा जाती ख्याल है कि ये जो जो रिवीजन जो रिवाइज रिवीजन को उन्होंने रसूओं वोटों में उड़ाया है,
ये इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। थैंक यू जैदी साहब। बहुत ही जी हॉन्टिंग पिक्चर जो है वो पेंट हुई है। आई थिंक दिस दिस मूव बाय द गवर्नमेंट हैज implications ऑन केस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, बट ऑल्सो जो कराची के लोगों के और कंज्यूमर्स के लिए जो अगले 6 से 7 सालों की जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो हम पूरी कर सकेंगे, यानी ये अंडर क्वेश्चन आ गया है। बिफोर आई मूव टू हारून साहब, वांट टू आस्क अ क्वेश्चन मुनिस साहब से कि कराची इलेक्ट्रिक की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ऊपर कभी कभार क्रिटिसिज्म हुआ करता है। आई थिंक गवर्नमेंट अपने तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस पार्क कर देती है सर्कुलर डेट के अंदर। अब कराची की जो लेकिन कराची इलेक्ट्रिक की जो है, डेफिनेटली एक क्रिटिक आया करता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है इट्स अ बिट हाई, एंड विच इज़ वाई यू आर आल्सो सीकिंग हायर टैरिफ्स। इसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे आप? देखिए, ये फिर से एक है, इसकी ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि बहुत ही डिटेल बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये आपको दो बातें कहूंगा। एक तो पहली बात ये जो ज़रा थोड़ी सी मोटी बात है। एक, पाकिस्तान में एक जनरेशन पूल है जहाँ पे तकरीबन लगभग 40,000 मेगावाट बिजली बनती है। एक जनरेशन पूल है जहाँ 2,500 मेगावाट बिजली बनती है। ठीक है ना? तो ये एक्सपेक्टेशन कि 2,500 मेगावाट बिजली बनाने का सोर्स सस्ता होगा और 40,000 का महंगा होगा, ये मतलब एक होता है ना होलसेल और रिटेल, मतलब, तो ये मतलब ऑन द फेस ऑफ इट दिस इज अ रॉन्ग assumption, नंबर वन। नंबर टू, अब मैं इसको थोड़ा सा ना स्लाइस एंड डाइस करूंगा। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल जो पावर परचेज होती है, उसके अंदर प्राइवेट भी है, उसमें हाइडल भी है, उसमें न्यूक्लियर भी है। न्यूक्लियर और हाइडल किसी भी प्राइवेट यूटिलिटी के लिए, मैं समझता हूं आज की तारीख में जब तक कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कायम ना हो जाए, ये नामुमकिन होगा कि हम ये सोचें कि कोई प्राइवेट यूटिलिटी न्यूक्लियर और हाइडल इनसे बिजली खरीद सकेगी डायरेक्टली। तो अगर है, और क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट खुद होती है, गवर्नमेंट पीएसडीपी से पैसे खर्च करती है, जो भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज होती हैं वो गवर्नमेंट को लोन देती हैं और ये बिजली बनती है, और ये उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो ये बिजली बहुत सस्ती बनती है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं नेशनल पूल से सिर्फ दो सोर्सेज निकाल दूँ, एक हाइडल और एक न्यूक्लियर, मैं सर पाकिस्तान के जनरेशन पूल से कम से कम 4 रुपए सस्ता हूं, कम से कम। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास प्रीडोमिनेंटली गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं और हम उसको चलाते हैं, फ्यूल है एलएनजी आती है और वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही बेचती है पीएलएल के जरिए। और हमारी ये बड़े अरसे से ये दरख्वास्त रही है कि हमें आप नेचुरल गैस दे दें, जिसपे कि प्रोविंस की गैस है, प्रोविंस में इस्तेमाल होनी चाहिए, बहुत बात होती रही है। अगर हमें नेचुरल गैस मिल जाए तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द गवर्नमेंट हैज न्यूक्लियर एंड हाइडल, बट वी विल स्टिल बिकम चीपर। सो ये, और इसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के कई जो है ना वो, अगर 40 रुपए की बिजली बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, और पूरा मुल्क जो है ना वो 26 रुपए की बिजली बना रहा है, या मतलब जो भी नंबर्स है, मैं भी देखिए नंबर्स में जाऊंगा ना बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उन सबको बोलने की जरूरत है। तो ये, और मैं करूंगा यही कि अभी मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो जो शीट है ना वो लगा दे और वो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि पता लग जाए कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में हमें उनको निकाल के देखना पड़ेगा, या हमें हाइडल और न्यूक्लियर को ऐड करके एलोकेट करना पड़ेगा केई की पावर जनरेशन एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री की पावर जनरेशन पे, तो भी हम सस्ते हो जाएंगे। सो आप निकाल के कैलकुलेट कर लें हम सस्ते हैं, आप प्रोरेटा करके देख लें हम सस्ते हैं, आप हमें नेशनल गैस दे दें तो हम सस्ते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारी बिजली महंगी है। और हमने इसके अलावा जितने अभी हमने देखे 600 मेगावाट का रिन्यूएबल कंपैरेटिव बिडिंग के जरिए नेपरा के पास जमा कराया था, उसकी एवरेज एनर्जी प्राइस इज हार्डली 10 रुपीज। उससे हमारी कॉस्ट कम होती, 1.5 साल हो गया है उसकी भी अप्रूवल नहीं मिली है। सो हम क्योंकि रेगुलेटेड है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाके बस लगा देंगे पावर। सो बहुत कोशिश की गई है, बड़ी लंबी बात है, लेकिन ये इम्प्रेशन मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दैट। और एक इस पे और भी बात ऐड करने को है कि जो हाइडल पावर इज नॉट अवेलेबल थ्रू द इंटायर ईयर, और ये मेरिट एक ऑर्डर गवर्नमेंट कायम करती है जिसकी वजह से इट प्रायोरिटाइजेस नॉन थर्मल जनरेशन। और ये सारे जो अगर कोई जस्टिफिकेशंस गवर्नमेंट के पास होती भी हैं तो इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो डेटा का धोखा है। एंड रियली व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि हाउ पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन सस्टेनेबली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बात जो हारून साहब ने मेंशन की थी, शमसी साहब ने, वो ये की थी कि क्वालिटी ऑफ पावर जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एज फार एज द Prime Institute is concerned, we don't think that there is any sense in having a singular uniform tariff across the country. हर जगह पे generation, distribution और transmission की जो costs हैं वो different हैं। NEPRA and NTDC are both playing a role which, at least in the most recent और recent few years जो है काफ़ी डिस्टॉर्शनरी है मार्केट ऑपरेशंस के हवाले से। एंड इट रियली पुट्स इन जेopardy जो डिस्कोस के प्राइवेटाइजेशन के प्लान्स हैं, बिकॉज इफ नेप्रा कंटिन्यूज टू इंसिस्ट अपॉन, एंड ये सारी बाय द वे ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन वक्त में हो रही हैं जब ISMO विच इज़ फॉर्मरली CPPAG ने CTBCM को इंट्रोड्यूस किया है, विच अलाउज फॉर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू हैपन, एंड फिर उसमें प्राइसेस जो हैं वो मार्केट के अंदर ही determine हो रही है, but not in the case where these large utilities are concerned. And it has real implications for cities like Karachi and their development, including the expansion of slums, ऐसी जगह जहाँ पे बिजली के लॉसेस हो रहे हैं और लोगों को बिजली की कीमतें भी नहीं पूरी करनी देनी पड़ रही, वो तो एक्सपैंड ही करेंगे। दे हैव इफेक्टिवली व्हाट इज कॉल्ड अ सब्सिडी, एंड वो गवर्नमेंट की परव्यू के अंडर अंडर ये चीज़ें सारी हो रही हैं। बट हारून साहब, सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। आप बता रहे थे कि कराची का जो कंज्यूमर है, they are going to be affected badly by these changes in the tariff. तो इसको प्लीज अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए। जनाब, मैं आपको बता रहा था, शब्बर भाई सीनियर है और जाहिर सी बात है उनका काफ़ी इनपुट होता है। अच्छा, मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी फर्स्ट, देन कराचीआइट, देन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान फर्स्ट। हम पहले ही पूरे रीजन में बहुत महंगे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, हम एज ए एक्सपोर्टर, एज ए मैन्युफैक्चरर, हमारे पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसमें हम बोलें कि पावर में हम नीचे हों और हम कहीं रोल प्ले कर सकते हो। कहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है, मैं आपको एक और चीज़ जो मैं बताऊं वो ये है कि हमारा जो है, साथ ही साथ हमें FCA के अंदर जो लास्ट टाइम हमें केई ने कुछ पैसे बचा दिए थे, ठीक है, वो भी अब कराचीआइट पे करेंगे। कराचीआइट पे करेंगे और साथ ही साथ जो है वो इंडस्ट्री भी पे करेगी। तो जब हम इंडस्ट्री भी पे करेगी और कराचीआइट भी पे करेंगे, तो आप ये बताओ यार, हमारे लिए लिवेबल क्या है? हमारे लिए गवर्नमेंट ने छोड़ा क्या है? अव्वल तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी पूरे दुनिया से, यानी हमारे जो रीजन है उसमें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो FCA जो अगर कई ने किसी तरह से हमें वापस भी कर दिए तो वो 2023 और 24 के अकाउंट्स के अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि वापस भी कई हमसे ले ले। तो मतलब हमारे तरह से, एक तरह से वो ये कर लें कि हमारे आंखों पे पट्टियां बांधे गवर्नमेंट, हमारे हाथ बांधे और सामने से तीर चलाए और हमसे कहे अब बच के दिखाओ बाबा। और वो भी एक आदमी नहीं, रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर तीर चलाएं, यानी 2 तीर आए तो वो बोले बच के दिखा दो बच्चा तुम अब यहाँ से। ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि 23-24 का तो हम अपना रिटर्न भी, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर चुके। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके तो अब क्या क्या लॉस दोबारा दिखाएं हम अपनी उसके बैलेंस शीट्स के अंदर, या हम इस साल हम अपना लॉस दिखाएं तो हम अपना कैपिटल खाएं? तो मतलब है गवर्नमेंट का मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ये नहीं समझ जानता कि भाई रेगुलेशन क्या होनी चाहिए क्या। मैं तो ये जानता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुझे कहाँ मिल रही है। मुझे तो कहीं भी कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल रही। मैं हर जगह फंसा हुआ हूँ। इलेक्ट्रिक कॉस्ट महंगी, मेरा जो, अगर मैंने FCA जो मुझे नेगेटिव में कहीं नहीं दिया, मैं अब उसको वापस करूंगा तो मैं दोबारा लॉस में आऊंगा। ठीक है, तो मतलब इट्स इनह्यूमेन फॉर कराचीआइट्स।
अच्छा, और पूरा नजला गिरता कराची हाइट्स के ऊपर है। अब आप मुझे बताएं कि हमारा जो है वो पीएचएल के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड जो गवर्नमेंट ने अपना जो सीडी को बचाने के लिए कि उसको पार किया, उसमें हमारा हिस्सा क्या है? और उसमें 3 रुपए 23 पैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम पे कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज है ना, तो मैं किस बात के लिए पीएचएल पे करूं? मुझे किस बात के लिए जो है उसको पेनलाइज किया जा रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आता कि सिस्टम जो है वो हमेशा कराचीआइट्स के खिलाफ क्यों होता है। सिस्टम कभी अपने लोगों को पेनलाइज क्यों नहीं करता? जो ये सारे फैसले करते हैं उनको क्यों नहीं पेनलाइज करता? सिर्फ कंज्यूमर ऑफ कराची, मैं इररेस्पेक्टिव है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, वो बाद में हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कराचीआइट पहले हूँ। मैं घर में भी बिल पे करता हूँ, मैं इंडस्ट्री पे भी बिल पे करता हूँ, मेरा जो लेबर है वो भी अपने घर में बिल पे कर रहा है, ठीक है जी। मेरा जो स्टाफ है वो भी लेबर, वो भी पे कर रहा है, तो उनकी लाइवलीहुड कहाँ है? वो इसी में पे करते रहे, वो इसी सर्कुलर डेट के अंदर घूमते रहे जो हमारा है नहीं, और फिर भी हम पे करें। ये क्या बात करते हैं हमारे साथ कराची हाइट्स के साथ? कोई तरीकेकार हो, कोई समझदारी की बात हो। वाई वी इट इज वी हु आर लाइक ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? क्यों भाई, हम क्यों? फिर साथ ही साथ अगर आप आ जाएं कि जो शॉर्टफॉल, यानी हमें मालूम है कि डेलिब्रेशन हुई, ये तकरीबन हमने इतनी लंबी डेलिब्रेशन की है कि यानी एक दफा तो कई के ऑफिस में हमने बैठ के बोला भाई आप ये मल्टी ईयर टैरिफ के लिए आप हमें हर 5 6 6 दिन बुला लेते हो, यार ये हमारा भी टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को लेना चाहते हैं, उसमें एनजीओज भी थे, उसमें इंडस्ट्री भी थी, उसमें डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स आए। इतनी मेहनत करने के बाद एक काम हो गया, उसको फाइनलाइज कर दिया, रेगुलेटर ने फाइनलाइज कर दिया, और फिर क्या हुआ? और 5 महीने बाद आपने वापस ले लिया। तो भाई उस टाइम का फैसला गलत था या इस टाइम का फैसला गलत है? यार इसको पर डिस्कस करो ना। आपने इतने मैन पावर्स इस्तेमाल करवा दिए, किधर गया मतलब उस स्टेक होल्डर्स के तमाम डेलिब्रेशन का मामला किधर गया? वो हम सब जीरो थे। आपने एडहॉकिज्म के ऊपर आके बैठ के एक फैसला कर लिया। उस वक्त ठीक है, हमारी भी केई से कहना था कि आप 44 नहीं लें, आप 37 लें, लेकिन गवर्नमेंट ने 39.75 खुद ही लगाया ना, रेगुलेटर ने खुद ही दिया ना, तो बात खत्म हो गई, ठीक है, हम भी खामोश हो गए। अब अगर आप कम करोगे, डन है, आप कम कर दें, कंज्यूमर से के जेब से कुछ पैसा नहीं आ रहा है ना जा रहा है। मैं अभी बात कर रहा हूँ सीए की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ इस अमाउंट की जो गवर्नमेंट ने अपना टैरिफ कम किया, ठीक है। अब मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि मुझे जो डर है और खौफ है वो ये है कि क्या केई अपने उतने ही गैंग्स काम कायम कर रख सकेगा, जहां मैं उसको फोन करता हूं तो वो 1 घंटे 1.25 घंटे में से पहले पहले मेरी जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देता है? क्या वो कायम कर सकता है? मतलब जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट कम होगी तो सर्विसेज में हर जगह सर्विसेज और क्वालिटी में फर्क आता है। जब सर्विसेज और क्वालिटी में फर्क आएगा तो हम कहाँ खड़े हुए? तो मतलब है कि एज ए इंडस्ट्री भी मैं सफर करूंगा और एज ए कराचीआइट भी मैं सफर करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक और चीज भी समझ लें, कराची के लिए एक होता है कि जी के हमें जो है वो आपके जो गवर्नमेंट के यानी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वो अपनी नेशनल उसके अंदर से यूनिट्स देता है, यानी कितने 2000 मेगावाट हमें मिलता है। भाई तो हम तो कैपेसिटी चार्जेस आपके कम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, अगर हम वो 2000 ले लें। अगर हम 2000 ना लें तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा? तो नेशनल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी पेमेंट करेंगे मजीद? अभी भी हमारे 60-65% कैपेसिटी चार्जेस है। ये किसकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है ना, किसी डिस्को की गलती है, ना ये किसी कंज्यूमर की गलती है, ना ये कहीं की गलती है। ये गलती किसकी? गवर्नमेंट ने सारे फैसले किए, हमने तो नहीं किए। जस्ट लाइक के अभी जो फैसला किया ये गवर्नमेंट ने एडोकिज्म के ऊपर फैसला कर लिया। अल्ट्रावायर ना कोई पूछा ना गचा, ना ही अपने कोई मामला को सीधा जानी पब्लिक से पूछते ना, हमसे, हमें स्टेक होल्डर्स को लेते, वो भी नहीं किया। और फिर क्या हुआ? फिर ये बेवकूफाना फैसला आ गया जी। अब ये बेवकूफाना फैसला जो है, ये इसकी इम्पैक्ट 4 है। नंबर 1, क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी। नंबर 2, हमारे जो एफसीए जो हम नेगेटिव में थे वो अब हम मजीद पे करेंगे 28 बिलियन के करीब। पीएचएल जो हम पे कर रहे हैं वो इंक्लूसिव है, यानी अगर देखा जाए तो हम 3 रुपए एफसीए के पे करेंगे नेगेटिव के पॉजिटिव में लाने के लिए, और साथ में पीएचएल 3 रुपए 23 पैसे पे करेंगे जो कि सरासर नाजायज है। और साथ ही साथ अगर हमें, यानी अगर देखा जाए एज ए कराची आइट, हम हमेशा फिलंथ्रोपिस्ट रहे,
हम पूरे पाकिस्तान के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। हम आज हर तरह से जो है ना उनकी मदद कर रहे हैं। तो बस ये कराची वालों का रोना है, और हम रोते ही रहेंगे। क्यों? फेडरल गवर्नमेंट हमें चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड समझती है। उसको चाहिए कि अपना माइंड ब्रॉड करे, हमारे साथ कंसल्टेशन करें, और हमारे फेवर में भी कोई चीज हो तो उसको रहने दिया करें। साथ ही साथ एक और ऐड करूं, कोविड के टाइम के जो इंक्रीमेंटल थे वो पूरे पाकिस्तान में पे हो गए सवाए कराची आइट्स के। दैट इज 35 बिलियन रुपीज। गवर्नमेंट वो तो दे नहीं रही, उल्टा 28 बिलियन हमसे 23-24 में वापस लेगी, और मजीद जो है वो 24-25 में भी वापस ले लेगी। मतलब इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग, मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन लोग फैसले करते हैं, कौन लोग हैं। फिर एक और चीज ये कि ठीक है आपने 32 कर दिया ना, मैं इसमें कहता हूँ गवर्नमेंट को, ठीक है जी 32 आपने कर दिया, फाइन, डू इट, कोई मसला नहीं। आप गारंटी दे दें, रेगुलेटर और गवर्नमेंट जो है गारंटी दे दे कि सर्विसेज ये रहेंगी, और गारंटी वर्बल नहीं, इन रिटन होनी चाहिए, मेंशनिंग कि उसकी सजा क्या होगी। उसमें पेनलाइज वो कौन बंदा होगा जो ये गारंटी इशू कर रहा होगा, लिख के दे दें, ठीक है जी। मैं समझता हूँ कहीं भी कोशिश कर लेगी अपनी वो टाइट बेल्ट जो है वो टाइट कर लेगी, लेकिन वो गारंटी दे दें कि फिर क्या होगा, हमें गारंटी दे दें, फाइन, वी आर हैप्पी विद इट। नहीं, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देयर आर नो गारंटीज। और अगर गारंटी आपको मिली भी तो वो मिलेगी के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है ज़्यादा ऑब्लिगेशन डाल के और ज़्यादा बर्डन डाल के। सो आई डोंट नो कि वेदर दैट इज गोइंग टू। मैं सिर्फ एक बात शब्बर भाई ने कहा ना कि स्टोरी ना कहें, इसको आप सिर्फ ड्रामेबाजी कहें, जो कराची वालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सॉरी मेरे अल्फाज ऐसे हैं, लेकिन इट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। जो हमारे इस वक्त कंडीशन है और जो हम फोरसीन कर रहे हैं कि हमारा 23-24 का एफसी है नेगेटिव का पॉजिटिव, और हम उसमें अपने लॉसेस दिखाएंगे अपने टैक्स के अंदर भी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया ना पूरे पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा टैक्स भी मेरे ऊपर ही माइनस में आएगा। ठीक है, मैं अपनी बैलेंस शीट्स को बराबर करूंगा, तो अब देखें हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर होशियार होगी, समझदार होगी, तो इसकी इम्प्लीकेशंस को समझेगी और लोगों से राय लेके इसको कहीं बेहतर जगह पे जाके बिठाने की कोशिश करेगी। थैंक यू। Let us hope so. Let us hope so. लेकिन it seems कि right now this decision has been made and इसकी implications जो हैं वो बहुत far reaching हैं। In fact, I think अभी सारी जो है वो obvious भी नहीं हुई। And it really puts under question कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटीज जो है वो कराची से जुड़ी हुई है। एंड while other parts of Pakistan do not क्या नाम है have the needs, the complexity in needs, the sophistication in needs, जिसके बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री चलती है, जिसके बेसिस के ऊपर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो है दुनिया का बड़ा सिटी जो है वो चलता है। लेकिन अब जो है इस और सोचने की बात यह है कि जब कराची इलेक्ट्रिक जिस तरह बैंकरप्ट होने को जाएगा, अगर शब्बर जैदी साहब का जो है एनालिसिस करेक्ट है, तो फिर इन 2 years हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज नीड्स जो सारे कराची के लोगों की और इंडस्ट्री की हैं। इट रियली पुट्स इनटू जेopardy कि क्या हो रहा है इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड somebody is going to suffer because of it. It's not going to be just Karachi people, it's going to be the whole country. इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन करने के बावजूद जो है अब ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि फिर से गवर्नमेंट को जो है नेशनलाइज करनी पड़ जाए शायद इंडस्ट्री। एंड अभी शायद जो व्यूज गवर्नमेंट के अंदर हो चल रहे होंगे, गॉड नोज, बट आई थॉट वी वर हेडेड टुवर्ड्स अ सिचुएशन जहां पे हम एक प्राइवेट मार्केट की तरफ फाइनली मूव ऑन कर सकेंगे। वी रियली नीड टू रिकंसिडर कि नेप्रा के पास प्राइस मैंडेट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आई एम गोइंग टू नाउ गो टू जिशान साहब। जिशान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों की जो जो फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबरशिप्स कमिंग फ्रॉम कराची। बहुत सारी एसोसिएशंस जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है वो कराची में बेस्ड हैं, और आई एम श्योर कि उन सारों को अब एटलीस्ट मामलात की समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और डिस्टॉर्शन जो है ये कितना ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। डू यू थिंक कि इंडस्ट्री किसी भी सर्कल के अंदर से इस न्यूज़ को पॉजिटिवली रिसीव किया गया है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, और ये भी बताइए कि आपके ख्याल में कराची की एनर्जी सिक्योरिटी का फ्यूचर जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या ज़्यादा वनरेबल हो रहा है?
जी, थैंक यू सो मच। बताइएगा कि एम आई ऑडिबल? जी, you are completely audible. जी, please continue with your speech. जी, जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। हमारे साथ एफपीसीसीआई के एनर्जी एडवाइजरी कमेटी के कन्वीनर रेहान जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आई एम श्योर कि लेटर ऑन हम उनके भी रिमार्क्स इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे इफ टाइम अलाउज। अच्छा, आपकी जो सवाल पर मैं आता हूँ, सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स ने बहुत डिटेल में उस पर रोशनी डाली है। मोनिस साहब ने एक इलेक्ट्रिक का पर्सपेक्टिव रखा है और शब्बाज़ादे साहब ने उसका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव रखा है। हम इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट को भी अगर देखें, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक की जो इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल इश्यूज उनके आते हैं तो ये मैं समझना चाहूंगा, मोने साहब इस पर लेटर ऑन जरा थोड़ा सा अगर फर्दर रोशनी डाल सकें कि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं जिसमें आप सर्विस को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ एंगेज भी हैं इंडस्ट्रीज के साथ, और पावर क्वालिटी एक बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक है इस वक्त। उस पर भी आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपके कुछ प्लान्स हैं। इसी तरह जो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मैं ये समझता हूँ कि जो ये टैरिफ का कट है, ये डेट्रिमेंटल है और इससे जो हम अभी फिलहाल इसको नहीं समझ पा रहे, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अभी रिसेंटली नेपरा ने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल में उन्होंने कंसल्टेशन की है और एफपीसीसीआई की तरफ से हमने भी कुछ उसमें अपने रिमार्क्स वगैरह दिए थे। तो अब वहां पर एक तरफ यूटिलिटीज को आप अकाउंटेबल भी कर रहे हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस को, अपने SAIFI को इम्प्रूव करें, इंटरप्शंस को आप कम से कम करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करें। उसके साथ साथ जो पावर क्वालिटी के दूसरे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री सफर कर रही है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह के आप डिसीजंस लेंगे तो हम एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो थोड़ा सा ये कंसर्न हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। एक छोटा सा अगर पर्सपेक्टिव में यहाँ पर अगर शेयर करूं, हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और वो इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे। एक स्पिनिंग मिल में अगर एक इंटरप्शन आता है या एक ऐसा डिप आता है जिसकी वजह से आपकी जो मशीनरी है वो बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन का लॉस है, और वो जो प्रोडक्शन का लॉस है वो इंडस्ट्री की कॉस्ट को बढ़ाता है, उनकी जो कम्पेटिटिवनेस है उस पर असर करता है, और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल बहुत सारे बिजनेस के और भी इश्यूज होते हैं, आपके इक्विपमेंट मॉल फंक्शन भी होती है, सब इश्यूज भी आ रहे होते हैं। तो हमें इस पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए कि के इलेक्ट्रिक की जो कैपेबिलिटी है इन इश्यूज को एड्रेस करने की, वो कहाँ पर सफर कर रही है। सेकेंडली, मैं एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक के कुछ पावर प्लांट रिटायर हुए हैं और कुछ अभी होंगे। तो समर का जब पीक टाइम आता है, क्या के इलेक्ट्रिक के पास इस वक्त जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्या उनकी एबिलिटी है कि वो सर्विस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें और लोड शेडिंग्स वगैरह ना हो? क्योंकि इसमें एक तो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट है, दूसरा इसमें रेजिडेंशियल जो पर्सपेक्टिव है, और रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और उसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक रिस्पेक्टफुली ये भी कहना चाहूंगा कि के इलेक्ट्रिक को शायद एंगेजमेंट्स भी करनी चाहिए, जो भी इस तरह के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स है, क्योंकि वो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये के इलेक्ट्रिक वर्सेस कराचीआइट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो पावर डिवीजन की तरफ से भी जो ये डिसीजन आया, सॉरी, जो उन्होंने ये एक्शन लिया, उन्होंने ये पिटिशन वगैरह की, तो उन्होंने भी इसको अभी जो आपके मिनिस्टर ने इसको जो डिसीजन आया है, अब वो इसको कह रहे हैं कि लैंडमार्क डिसीजन फॉर कराची रेजिडेंट्स। तो मतलब वो इसको पोर्ट्रे इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे ये के इलेक्ट्रिक वर्सेस कराचीआइट्स है, और वो ये बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि इस डिसीजन से कराची वालों को बड़ा फायदा होगा। तो अब आगे चलकर जब कराची वालों को जो इनडायरेक्ट जो इश्यूज आएंगे, कि इलेक्ट्रिक की सर्विस की अवेलेबिलिटी के जो भी ऑपरेशनल इश्यूज होंगे, जो पावर क्वालिटी के इश्यूज होंगे, तो वो लोग जो है, लोगों का जो गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो किसके अगेंस्ट निकलेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे ख्याल में, इसको हमें
देखना चाहिए। बाकी ये हारून शमसी साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं। हम 2000 मेगावाट ऑलरेडी जो सेंटर से ले रहे हैं, वो महंगे एलएनजी के उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पंजाब में लगे हुए हैं। और जब वो लगाए जा रहे थे तो उस वक़्त इलेक्ट्रिक के जो अपने जो प्लान्ड उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उनको कैंसल किया गया। तो उस पर भी ज़रा मेरे ख्याल में जो बाकी स्पीकर्स हैं, जैसे मोने साहब साहब इधर हैं, वो उस पर थोड़ी-सी रोशनी अगर डालना चाहें तो हमारी सर्विस जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, वो तो इससे इम्पैक्ट होगी, बिल्कुल होगी। आप ना तो हमें हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी वो हमारे इख्तियार में दे रहे हैं, कल को अभी आप हमें 2000 मेगावाट दे रहे हैं, कल को आप ये भी डिसीजन चेंज कर देंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट डेफिसिट तो आ गया ना। अब ट्रस्ट डेफिसिट अभी आप जिस तरह से एक डिसीजन करने के बाद आप 5 महीने के अंदर उसको आप रिवर्स कर रहे हैं, तो कल को तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारी जो पावर डिवीजन है, मिनिस्ट्री है, वो या शायद उनके एडवाइजर्स उनको थोड़ा-सा गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं। और एक कम्युनिकेशन गैप है, और इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो सिंध के हैं, उनको इस पर थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहिए। इसको सीसीआई में इस मैटर को भी लेकर जाएँ, और इसमें फिर ज़रा डिस्कस करें कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के इश्यूज़ हैं। अब अगर बिजली के भी इश्यूज़ आने लग जाएँगे, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मॉइल होगा। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल डिस्कशन, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड आई थिंक इधर जो है पावर डिवीजन पे जो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं अवैस लवारी, ही इज़ वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा रोल प्ले किया। अब इनकी डिवीजन से अगर इस तरह के डिसीजंस आना शुरू हो गए विच आर कॉन्ट्री टू प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्री टू द गोल्स ऑफ द कंट्री, विच आई थिंक आर के टू मैक्सिमाइज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, to improve confidence in Pakistan Stock Exchange, to improve business confidence, ease of business, ये सारी चीज़ें जो है ये एक डिसीजन ने फ्लैट आउट जो है सबको डिस्टॉर्ट कर दिया, एंड इट हैज़ पुट अस इन a big quandary. I think from we're getting the input from Karachiites themselves कि जो quality of service है, that is one of their highest priorities, and जो उसकी डिस्ट्रप्शंस में क्वालिटी ऑफ सर्विस में जो रिडक्शन आएगी उसकी वजह से नुकसानात होंगे। वैसे ही जो है इंडस्ट्री ये नुकसानात फेस कर रही है, एंड आई थिंक इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द competitiveness ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ there are many things to be examined at the larger scale, जैसे कि मेरिट ऑर्डर, जैसे कि यूनिफॉर्म प्राइस टैरिफ। बट अलवी साहब, आप कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं आई थिंक? जी, मैं बस ये पावर क्वालिटी के ऊपर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये देखिए, इसमें यकीनन मैं ये इसको डिनाई नहीं करूँगा कि इश्यूज नहीं होते, मगर देखिए 50,000 के करीब कराची में इंडस्ट्रीज़ हैं, और उनको उनकी मेन इन मोस्ट केसेस उनकी सप्लाई की जिम्मेदारी हमारी है। और शायद हमने वी हैव नॉट डन द एंटायर जर्नी विच इज़ ऑलवेज अ जर्नी। देखिए, ये कहना कि बस हमने अचीव कर लिया, ये गलत बात होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की आपने जिक्र शुरू में किया था, इस पर हमने बड़ा वक्त लगाया था, और हमने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स के ज़रिए नेपरा को ये समझाया था कि ये बड़ा ज़रूरी है कराची को अपग्रेडेड रखने के लिए, और आगे अगर जो एक्सपेंशन होगी, और उस पर हम बहुत मेहनत कर रहे थे। तो बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी, वैसे अभी भी मैं देखें एज अ कराचीआइट, मैं आप लोगों सबको ये बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश कराची की है, और मेरे ख्याल में मैं यहीं पे मेरा ख्याल में मुझे यहीं दफन होना चाहिए, मुझे कहीं और नहीं जाना। तो मेरी जिम्मेदारी जो है ना इस शहर के लिए है, और जो भी रिसोर्सेज होंगे, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। और होपफुली मुझे यकीन है कि हम कन्विंस भी करेंगे सारे स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने फैसले करने हैं आगे भी, कि इसको ठीक किया जाए। क्योंकि ये ना, ये 2.5 करोड़ आवाम का शहर है, कराची की शहर है, 2 पोर्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। ये नहीं, ये इस बेसिस पे मैं तो कह रहा हूँ कि इसके लिए ना शायद अगर ये करना है तो फिर शायद जिनों की ज़रूरत होगी जो ये चला सके, किसी इंसान के बस का नहीं होगा। तो क्योंकि इंसानों ने ही चलाना है, तो चाहे हमारी टीम हो, कोई भी और टीम हो, उनको एक सस्टेनेबल टैरिफ चाहिए होगा। सो ये अल्लाह ने कहा चाहा इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा, एंड होपफुली नॉट मच डैमेज विल बी डन बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी हैव सीन राइट नाउ।
Alvi साहब, you remain very positive. I'm very happy to see कि आपका कॉन्फिडेंस है, बट आई थिंक अगर ये कोई गवर्नमेंट यूटिलिटीज की कंपनी होती तो इसके बस से बाहर था ये कि इसको एक सस्टेनेबल आउटलुक जो है वो उससे कंसीव भी कर सकें. सो आई थैंक यू फॉर योर पॉजिटिविटी, बट आई थिंक गवर्नमेंट को इधर जो है कहीं पे कोई ना कोई अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा. आई थिंक रेहान साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा कराची हाइट्स का और रिव्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले हारून साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है. सो हारून साहब, आप अपनी कोई बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ करें, फिर मैं रेहान साहब के पास आता मैं हूँ. सिर्फ इस थैंक यू सॉरी रेहान, मैं बीच में कूद गया, माजर. इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले भी ये होता था कि जो बड़ी इंडस्ट्री थी ना, वो कहीं ना कहीं अपनी जनरेशन के सिस्टम्स खुद बना सकती थी और बना लेती थी. अच्छा, अभी भी ये है कि वो अपने रिन्यूएबल्स के ऊपर चले गए. जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो आएगा एसएमईज का. और एज पर द टेक्सटाइल की जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो टेक्सटाइल डिवीजन है, उसका कहना है कि एसएमईज का नंबर 85 है पूरे पाकिस्तान में. चूंकि कराची जो है वो 55-60% के करीब एक्सपोर्ट करता है, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से लगा लेंगे कितने एसएमईज हैं यहाँ पे. चूंकि वो रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकेंगे, तो जो सफर करेगा वो एसएमई सफर करेगा. और गवर्नमेंट कहती है कि एसएमई जो है वो बैकबोन है, जबकि मेरे हिसाब से वो कहते कुछ है और करते कुछ है. तो इसका मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहता था कि एसएमईज के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका. थैंक यू. जी जी. एंड जो भी आप पॉलिसी अभी गवर्नमेंट की तरफ से देख लें, उसके अंदर जो हाईलाइट होती है, जो मेन एम्फेसिस होता है, वो एसएमईज के ऊपर ही आ रहा होता है. तो आई डोंट थिंक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ना एसएमईज ना लार्ज कंपनीज जो हैं उनका इधर कोई सर्वाइवल कराची की तरफ जो है वो छोड़ा है गवर्नमेंट ने. दो इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, पता नहीं कैसे अब इनको कोप करेंगे. लेकिन रेहान साहब, आपने सारी डिस्कशन सुनी, और मे बी यू डिसएग्री, लेकिन बताइए आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर. डू यू थिंक दैट ये जो अब रीसेंट चेंजेस गवर्नमेंट ने नेपरा ने इंड्यूस किए हैं, ये दीज आर गोइंग टू हैव एनी ट्रैक्शन, एंड इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान आते हैं या कोई फायदा भी है? Does everybody understand the meaning of landmark? There is a word in English called landmark judgment, landmark decision. तो इसका मतलब तो सबको पता है ना लैंडमार्क क्या होता है. जी. अच्छा, अब लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी प्रेस रिलीज निकाली है अपनी, उसमें हमने सबसे पहले लिखा है इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ नेपरा. अभी ये लैंडमार्क डिसीजन किस तरह है मैं आपको बताता हूँ. पहली बात ये कि कराची की अहमियत को तो हम समझते नहीं है. 50% एक्सपोर्ट, 50% टैक्स, रिपीट करने का फायदा नहीं है, सबको पता है. सबने सुन के भी इग्नोर करना है. नंबर 2 पे आ जाए. मैं शब्बर साहब की बात से भी इतराज नहीं करता, उन पे भी इतराज करता हूँ, एग्री नहीं करूंगा कि ये के इलेक्ट्रिक के इस फियास्को के बाद, आई कॉल इट अ फियास्को, एन एडवेंचर, इस एडवेंचर के बाद कोई पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. नंबर 3, नेपरा की अथॉरिटी पे मैं बात करूंगा थोड़ी सी. नंबर 4, ये जो एफसीए का, हम इसको, मैं कहूंगा, मैं बड़ी, देखें, साफ बात करने वाला आदमी हूँ. एफसी का जो रोला पड़ने वाला है, रोला समझते होंगे आप लोग सब, वो एक नई कहानी खुलने वाली है. हम पहली बात पे आ जाएं कि ये के इलेक्ट्रिक 2000 मेगावाट लेता है नेशनल ग्रिड से. 26,000 मेगावाट के हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं. ये कहते हैं भाई कि हम आपको, के इलेक्ट्रिक को हम देते हैं बिजली 2000 मेगावाट. आप हमें बिजली देकर कोई एहसान नहीं कर रहे कराची के कंज्यूमर को. कराची का कंज्यूमर आपके 2000 मेगावाट के कैपेसिटी चार्जेस कम कर रहा है. आपके कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपए हैं पूरे पाकिस्तान के. हमारे कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ 8 रुपए हैं. 9 रुपए का हम नेट बेनिफिट दे रहे हैं इनको इस वक्त 2000 मेगावाट के ऊपर. तो 2000 को, 9 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर लें 2000 पर आवर से, मल्टीप्लाई कर लें 30 डेज, और मल्टीप्लाई बाय 365 डेज. तो ये कराची पूरे पाकिस्तान को सब्सिडाइज कर रहा है. नंबर 2 पे आ जाए. अब बात हो रही थी कि ये जो डिस्कोज हैं, अब इनको कोई खरीदेगा नहीं. मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, डिस्कोस बिकेंगी. लेकिन इस एडवेंचर के बाद, इस एडवेंचर के बाद किस मंजूर नजर इंसान को बेचने की कोशिश की जा रही है, किस कीमत पे की जा रही है, जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी को
जब उसका टैरिफ रिवाइज करके एक एडवेंचर किया गया है और उसके बाद वो कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाएगी तो इन्वेस्टर कोई और नहीं आएगा, जरूर हमेशा की तरह से 10 साल बाद ये बात खुलेगी कि जी ये काम इसलिए किया गया था ताकि डिस्कोज जो प्राइवेटाइज करने के लिए लगाई हुई है हमने लाइन में, कोई ना कोई इन्वेस्टर को बेनिफिट दे दिया जाएगा इसका। नंबर 3 पर आ जाए, नेपरा की बात कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी की सेक्शन 7(2)(b। नेपरा एक वाहिद रेगुलेटर है जिसके पास अपने ऑर्डर को चैलेंज करने की अथॉरिटी मौजूद है और उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये अथॉरिटी शायद, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, मेरी बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ना तो हाई कोर्ट के पास है ना मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उनको भी जाकर अपील करनी पड़ती है या नेक्स्ट बेंच में जाना पड़ता है आपको अपील करने के लिए। अब आपके तीसरी बात पे, नेपरा ने अपने ऑर्डर को, जिसपे उसने 2.5 साल लगा के ऑर्डर निकाला, उसको चैलेंज करके बोला मेरा मैं उस वक्त या तो मतलब होशो हवास में नहीं था, और या फिर मैं अब होशो हवास में नहीं हूँ। मतलब होशो हवास में क्यों नहीं हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं होशो हवास में ना होने की वजह से उस वक्त मेरा ऑर्डर गलत था या इस वक्त मेरा ऑर्डर गलत है, तो ये भी हो गया। अब ये जो पावर है इनके पास, इसको एक्सेस किया गया है, तो ये मेरा सवाल यहाँ पर ये है, पूरे पाकिस्तान में आईपीपीस को अरबों डॉलर अदा कर दिए गए हैं, आप आज उनके ऊपर ये पावर एक्सरसाइज कर दें, टैरिफ तो आपने ही दिया हुआ उनको, उनका टैरिफ कम करवा दें, मसला ही कोई नहीं है, आप निगोशिएशन क्यों कर रहे हैं? जब टैरिफ आपने इशू किया हुआ है, एक का टैरिफ अपने ऑर्डर पर रख रहे हैं, इसको भी आप जब आप कम कर दें हो जाएंगे ₹17.60 कैपेसिटी चार्जेस बन जाएंगे। आखिरी बात सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो एफसीए रिवर्सल हुआ है, इससे पहले नेपरे कहा था बिल्कुल सब ठीक है, ₹15.99 हमारा हमारे चार्जेस हैं, और इन चार्जेस को हम एडमिट करते हैं और ये फाइनलिटी अचीव कर चुके हैं। अब नेपरा खुद जाके बोल रहा है नहीं, कोई न्यू एविडेंस भी नहीं आया, क्योंकि न्यू एविडेंस आ नहीं सकता इस केस में, ये लीगल पॉइंट है, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे लीगल पॉइंट, सारे एविडेंस, सब कुछ स्टडी होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद टैरिफ निकला है। नेपरा कहता है जी अब आप कंज्यूमर से 28 अरब रुपए वसूल कर लें और उसके बाद 24-25 अरब रुपए वो भी आप वसूल कर लें। तो ये जो है ना, मेरी समझ से बाहर है, मैं कई वकीलों से भी पूछ चुका हूँ, उनकी भी समझ से बाहर है, मैं अपने पावर सेक्टर के एक्सपर्ट दोस्तों से पूछ चुका हूँ, उनकी भी समझ से बाहर है, और इस वक्त इंटरनेशनल पावर एक्सपर्ट्स जो हैं, जो आपको अक्सर मतलब पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को देख भी रहे हैं, उनकी भी समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जब हमारे ऊपर आएगा ये एफसीए और हमें अदा करना पड़ेगा, तो ये पैसे भी गवर्नमेंट, एक तो हमने किया 2000 मेगावाट से की सब्सिडी दी हमने गवर्नमेंट को, फिर हम जो टैक्स देते हैं वो भी हमारी सब्सिडी है बिजली के बिल में, वो भी हम अदा करते हैं। उसके बाद ये एफसीए का जो रिवर्सल हुआ है, तो उससे गवर्नमेंट के 28 रुपए बच जाएंगे। अब आप आखिरी बात पे आ जाएं, अब अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर लें, डिस्कोस का टैरिफ क्या है? 34 रुपए। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ क्या है? 32 रुपए 57 पैसे। आगे आ जाएं, अब इस 34 रुपए जो डिस्कोस का टैरिफ है, उसके साथ वो साल में 500 अरब का लॉस भी करते हैं। अच्छा, डिस्कोस की सेल क्या है? डिस्कोस की सेल है 1 लाख गीगावाट आवर, 1 लाख गीगावाट आवर। 1 लाख गीगावाट आवर बेच के वो नुकसान करते हैं 500 अरब का, जो अभी 801 अरब रुपए अदा किए गए हैं फिजिकल स्पेस से, सर्कुलर डेट में ऐड हो जाते हैं। 801 अरब रुपए फिजिकल स्पेस से अदा किए गए, 1225 अरब रुपए अदा किए गए कंज्यूमर के ऊपर पीएचएल सरचार्ज, जिसमें कराची का कोई रोल नहीं है। बहरहाल ये बात की बात है, तो डिस्कोस को लॉस करने की पूरी इजाजत है, पूरी इजाजत है, जितना मर्जी लॉस करे, आखिर में आगे टैक्स पेयर है और कंज्यूमर नहीं बढ़ना है। केई के पास ये एडवांटेज नहीं है। अब जब हम इस 500 अरब के लॉस को ऐड करते हैं 1 लाख गीगावाट आवर पे, और उसके बाद इसका टैरिफ निकालते हैं, तो ये बनता है 39 रुपए। आज के इलेक्ट्रिक का टैरिफ है 32.57, डिस्कोस का टैरिफ है 39 रुपए, लॉसेस को ऐड करके। मतलब इससे सिंपल कैलकुलेशन करने का तो और कोई तरीका नहीं है। तो अब आप बताएं, इससे बड़ी कोई ज्यादती है? और मैंने आपको बताया होना यही है, ये कहानी कुछ और की तरफ जा रही है, ये डिस्कोस किसी को मंजूर नजर अफराद को देने के लिए ये काम किया गया है। बाकी दैट्स ऑल आई हैव टू से सर, थैंक यू। वाह जी, आपने ये किसमें इसमें एक और एलिमेंट ऑफ जो है बैड इंटेंट आई थिंक इसमें इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज वर्थ कंसिडरिंग, बिकॉज इस तरह के स्टंट्स और इस तरह के जो हैं एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट के अंदर से, दे आर नॉट अनएक्सपेक्टेड। एक बिल्कुल ही अनसर्टन सी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। आई थिंक पावर सेक्टर पूरे
सेक्टर को अफेक्ट करेगी पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट एंगल। आई थिंक अगर गवर्नमेंट में से कोई ये सुन रहा है डिस्कशन, तो आई थिंक मे बी वी आर बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली रैशनल क्या है, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू ट्राई टू ग्रास्प कि क्यों ऐसा मूव जो है वो लिया गया होगा। And we can't come up with good reasons. We can come up with some bad reasons, but we can't come up with good reasons जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने मूव लिया होगा। आई थिंक चलें, जो डैमेज था वो तो हो गया, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस इट। तो आई थिंक जो भी हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं, शमसी साहब, जीशान साहब, आपके ख्याल में आगे जाके रिफॉर्म की तरफ जब हम गवर्नमेंट से बात की जाए, हमारे जैसे इदारे जैसे प्राइम इंस्टीट्यूट है, वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू द गवर्नमेंट एट ऑल टाइम्स, एडवाइजिंग देम, तो आपके ख्याल में किस तरह की बातों को जो है उठाना चाहिए? आई थिंक वन थिंग दैट वी आर वेरी वेरी सर्टन अबाउट इज कि प्राइस मैंडेट जो नेपरा के पास नहीं होना चाहिए और किसी किस्म के मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आई थिंक रेगुलेशंस का जो एस्पेक्ट है नेपरा का, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर तवज्जो जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए नेपरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, चोरी इंसेंटिवाइज्ड है, बैड ऑपरेशंस इनएफिशिएंसी इंसेंटिवाइज्ड है, और इवन इकोनॉमिक सेंस जिस तरह बनती है प्रोडक्शन की वो भी नहीं फॉलो की जा रही। तो आप में से कोई रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर अगले सालों के हवाले से कोई बात करना चाहेगा? व्हाट कैन वी डू टू इंश्योर कि पॉलिसी सर्टेनिटी भी बरकरार रहे, मुल्क के लिए चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के आउटकम्स भी अचीव किए जा सकें? गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारे मूव्स हो रहे हैं। अभी इन्होंने सीपीपीएजी को आईएसएमओ में कन्वर्ट किया है, सीटीबीसीएम लेकर आई है, लेकिन फिर जब इस तरह के लार्ज स्केल के ऊपर डिस्टॉर्शंस आते हैं तो फिर चीज़ें जो है वो बिल्कुल बिखर के रह जाती हैं। तो एनी इनपुट, जिशान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी। ये जो मैटर है इसमें सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम इसको एनर्जी की या टेक्निकल लेवल पर हम जितनी भी डिस्कशन कर लें, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी इस वक्त कराची की पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो सिंध की जो प्रोविंशियल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये टेकअप करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें एक डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए। और ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर टाइमली, बेशक एक शॉर्ट नोटिस पर था लेकिन टाइमली एक वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जो हमारी जो कराची की पॉलिटिकल लीडरशिप है और सिंध की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ एक डायलॉग हो, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं और जो के इलेक्ट्रिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक सबसे पहले तो एक किसी कॉमन ग्राउंड पर आए। जैसे मैंने पहले एक बात कही थी कि हम बहुत कमेंट्री सुनते हैं, और क्योंकि हमारा तो हम लोगों में जब चलते फिरते भी हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेक्निकल, जो मेरी फ्रेटर्निटी है, इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी भी, वो भी इलेक्ट्रिक से बहुत नाला है। उनको बहुत सारी ये ग्राउंड रियलिटीज का या इन सब टेक्निकलिटीज का इतना डेप्थ में नहीं पता होता। तो कहीं पर कम्युनिकेशन का भी गैप है। आई एम नॉट श्योर कि कई उसको किस हद तक उसको मैनेज कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जितना भी सारा गुस्सा है वो के इलेक्ट्रिक पर आता है। तो मेरा इसमें एक तो मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा, एक कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स का डायलॉग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और इसमें जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड लाकर फिर इस पर हमें जो है वो सेंटर के साथ बात करनी चाहिए। और जैसे मैंने एक एडवाइस दी कि सीसीआई में इस मैटर को जरूर उठाना चाहिए। आई थिंक जस्ट टू कंप्लीट दैट थॉट के एक टेक्निकल इशू है, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का इशू है, और इसको जो है बिल्कुल पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है वो ड्राइव कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल एलिमेंट आई थिंक जो रेस करने वाला है स्टेक होल्डर वो है ही गवर्नमेंट। एंड आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी केयरफुल ऑल्सो, देयर इज ऑलवेज अ ब्लो बैक। इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अलवी साहब, आई थिंक आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, जो अभी हमारे जो एफपीसीसीआई के कोलीग ने जो बात कही है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमने, यकीन करें, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट
और अभी भी ये करंट के अंदर भी जब ये बात चल रही थी, और जैसे मैंने कहा कि हम लिस्टेड कंपनी, हम ओपनली आकर के किसी बात को प्रेस में नहीं कह सकते थे, लेकिन जब हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे थे तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्विंस वेरी सीनियर पीपल कि ये 7 रुपए की कमी होगी, मगर इससे कस्टमर टैरिफ कम नहीं होगा। हम वी वर प्लीडिंग कि आप लोग, बट शायद ना ये वो बात है जो लोग सुनना चाहते हैं, और इसके आगे वो ये समझना नहीं चाहते कि ये बात गलत है या सही है। और एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इससे सिर्फ 3 दिन पहले ये यकीन आया हमारी बात का कि अच्छा, इससे कराची के शहरियों की बिजली सस्ती नहीं होगी। हमने कहा नहीं सर, बिजली सस्ती नहीं होगी। एंड देन दे गॉट अ बिट कंसर्न, और फिर उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की, ये क्या हो रहा है। देखिए, और मैं आपको बताऊं, शायद हम, एंड आई प्रॉमिस कि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन कम्युनिकेशन, मगर देखिए, दो चीज़ें हैं जिसको ना हम शायद एड्रेस करने में नाकाफ़ी हैं, और वो ये है कि जो टैरिफ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किया है। ये हम जितना भी ये भी वो बात है कि जब अगर लोग ये बात मान लेना, तो फिर शायद उनके लिए केई को लान तान करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये बात मानने का मतलब है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो फिर मुजाहरा कैसे करेगी कि अगर के इलेक्ट्रिक ने बिजली का रेट बढ़ाया नहीं है, कम नहीं किया, तो फिर वो किस बात पे मुजाहरा करेंगे। यहाँ पे उन्हें तो सिर्फ इस्लामाबाद जाना चाहिए। दूसरी बात, ये लोड शेडिंग, देखिए, ये भी एक्सपेक्टेशन के इलेक्ट्रिक जाके हर उस आदमी की बिजली काट देगा जो पेमेंट नहीं कर रहा, और सारा कुंडा उतार देगा। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक है, मगर सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये हो सकता है। और आप लोग कराची में जो रहते हैं, अभी शायद एक वहाँ पे मेरे ख्याल में सुपर हाईवे के ऊपर एक इंडस्ट्री थी जहाँ पे एक पीएमटी के ऊपर कुंडा लगता था। हमने उस पीएमटी को एक फैक्ट्री की प्रेमिसेस के अंदर रखवा के लॉक इन की में रख दिया। मेरे पास अभी भी वॉइस नोट है जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम ये ताला खोलो, वरना हम काली गोली चलाएंगे। देखिए, बिजली चोरी इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम उसके बाद वहाँ उन्होंने ताला खोला या नहीं खोला, मगर ये एक 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 रियलिटी है। और जब भी हम बात करते हैं कि दिस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज प्रूडेंट कॉस्ट, अगर खुदा न खास्ता जैसे कि आज की तारीख में हमारा अगर रिकवरी का हम कह रहे हैं कि जी 6% है और 93% हमें रिकवरी करनी चाहिए, जो हम 93 नहीं कर पा रहे, हम अभी भी 91 91.5 पे हैं, तो हम अभी भी पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे। मगर हाँ, हमने कन्विंस किया कि सर आप पिछले 5 साल का एवरेज देख लें, आप ये देख लें, तो बहरहाल, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कम्युनिकेशंस, हमारी जो टीम है वो दे ट्राई देयर बेस्ट, बट ये वो बात है कि अगर लोग और हम और भी जितना भी कर देंगे ना, लेकिन एक आदमी के लिए, मैं एक छोटी सी बात पे, फिर सारी बात है कि बहुत लंबी बात हो है, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली की एक मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ये केई कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है कि अगर एक आदमी एक महीने के लिए 200 यूनिट क्रॉस करता है, तो उसकी बिल की कीमत 190 यूनिट पे अगर आती है 4,000 रुपये, तो 210 यूनिट पे वो चली जाती है 7,000 रुपये। अब वो आदमी जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उसे ये नहीं मालूम कि ये नेपरा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, ये हम नहीं कर सकते। हम प्लीड करते रहते हैं इनसे कि भाई आप ये जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं, आप उनको महीने, जिस महीने वो 200 क्रॉस करें, आप उनको रिलीफ देने दें। जिसमें वो 200 से कम रहे, मतलब 200 से कम हो तो रिलीफ मिले, 200 से बाद 6 महीने का टाइम लाइन होनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से एक महीने ने अगर आपने 200 क्रॉस किया, तो 6 महीने तक अब आप प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। आपको 6 महीने 200 से कम यूनिट रखने हैं टू गेट दैट बेनिफिट, ठीक है ना। और मैं फिर ये कहूँगा कि शायद मुझे पता नहीं कहना चाहिए, मगर मैं फिर भी आपको ये कहूँगा, हमने ऐसे घरों में जहाँ पे के फैमिली ज़्यादा है, हमने उनको 2 मीटर लगा दिए, ताकि उनके अगर उनके 350 यूनिट आने हैं तो वो 170 हो जाए। तो ये फैसिलिटेट करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब हम बिजली का निज़ाम चलाएं, लोगों को कनेक्शंस दें, अपनी रिकवरी करें या कम्युनिकेशन करें, तो मैं कितने पैसे खर्च करता हूँ, कर सकता हूँ जस्ट टू कन्विंस पीपल, मैं सिर्फ ये कहूँगा। और इसमें मैं अगर और कोई सवाल होगा तो ज़रूर, बट यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जमा और।
थोड़ा सा गौर इसके ऊपर जरूर गई हैं। वैसे ही पावर सेक्टर जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसमैनेज्ड पावर सेक्टर्स इन द इंटायर वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का मुकाबला करता है पाकिस्तान। एंड जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, देर सो मेनी मिस्टेक्स, ऑब्वियस मिस्टेक्स जो गवर्नमेंट करती ही जा रही है। ऑफ कोर्स some of it we owe to the mistakes that we made in the 70s, but I think कि जो अभी के हालात हैं वो गवर्नमेंट के सारे होशो हवास के अंदर ही किए जा रहे हैं। एंड टू मी इट ऑल्सो सीम्स लाइक के ओवरऑल पॉलिसी को सैबोटाज किया जा रहा है। रिफॉर्म के हवाले से बात अपनी कंटिन्यू करते हैं और अब थोड़ा सा क्लोज की तरफ प्रोग्राम के चलते हैं। शमसी साहब, आपके ख्याल में अभी क्या हो सकता है? क्या नेपरा को डी मैंडेट कर देना चाहिए प्राइसिंग फंक्शन? क्या हमें मेरिट ऑर्डर से हट जाना चाहिए? क्या करना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है वो करेक्ट हो जाए? ये तो कोई कोई अच्छा रास्ता आगे नजर तो नहीं आ रहा। देखिए जी, इसमें जो है ना, है ये कि बात हो रही है कि लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की। ये देखें, ये माइलेज लेने वाली बातें हैं सारी। ठीक है, होता ये है कि अगर हम यानी एक दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखें तो गैस के अंदर करते ये हैं कि लाइनों पे लाइनें बिछी जाती हैं। ठीक है, गैस है नहीं हमारे पास। ठीक, और कोई मिनिस्टर आता है या किसी को खुश करना होता है, वो कहते हैं यार इनके गांव तक जो है ना वो गैस की लाइन बिछा दो। गैस तो आएगी नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट यह है कि उस लाइन के ऊपर जो है ना स्विस सदर्न गैस और स्विस नदर्न गैस जो है ना वो अपने पैसे उठाती है। ठीक है, ये एक कॉस्ट है जो एक्सचेकर, नेशनल एक्सचेकर पे पड़ता है। ठीक है, तो ये माइलेजेस लेने के वाला जो मामला है ना, इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक के ऊपर अगर पूरे पाकिस्तान में एक ही इलेक्ट्रिक होनी चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल जो है ना वो भी एक ही दाम में हो फिर। ठीक है, तो कराची के अंदर सस्ता होना चाहिए, वहां पे अलग होना चाहिए। मतलब ये मुख्तलिफ चीजें हैं। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि नाउ वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरा, जिसके अंदर हमें हर चीज की कंपिटिटिवनेस चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अब टेलीफोन कंपनीज हैं, अब अगर आप इसमें भी जो है CTBCM कर रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप उनको बुलाने के लिए कहें कि नहीं जी प्राइस मैंने करनी है और काम आपने करना है, तो वो भी क्यों आएंगे? ठीक है, मैं भी नहीं इन्वेस्ट करूंगा इसके अंदर फिर तो। हाँ, आप मुझे ओपन कर दें, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मेरे पड़ोस वाला अगर 2 रुपए में दे रहा होगा तो मैं, मेरे भी माल 2 रुपए में बिक रहा होगा। आप टेलीफोन कंपनीज को देख लीजिए। ठीक है, उनकी प्राइसिंग जो है वो पेपरा के पास नहीं है, वो जो है वो पेमरा के पास, सॉरी, वो जो है वो उनके अपने पास है। तो वो प्राइसिंग देखे ना, कंपटीशन में वो कम या ज्यादा नहीं है। अब है ये सिलसिला कि इनको चाहिए, जैसा आपने कहा और जैसे दूसरों का कहना है, कि हाँ रेगुलेटर इज मस्ट, रेगुलेटर नहीं हटना चाहिए, लेकिन प्राइसिंग रेगुलेटर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जैसा हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि प्राइसिंग के मामले में जो डिस्कोज है वो कह रही होती है कि कम प्राइस हो, लेकिन नेपरा जो है वो उसको ओवर करता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए चीजें कर रहे होते हैं। इसी तरह हम पेट्रोल में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस रेगुलेशन है ना, ये रेगुलेटर के हाथ में नहीं हो। हाँ, प्राइसेस का जो मैंडेट है वो कंपनी के पास हो। आप मार्केट ऑन करें, मार्केट में लोग आए, वो अपना माल बेचें, सस्ता बेचें महंगा बेचें, ये उनके हाथ में कि कैसे बेच सकते हैं। लाइसेंसिंग के लिए ठीक है जी, जो सिक्योर्ड प्रोसीजर है, जो SOPs हैं, उसको पूरा होना चाहिए, वो रेगुलेटर देखे। ठीक है, हाँ, अब अगर कोई आदमी ज्यादती कर रहा हो तो रेगुलेटर के पास जाने वाली बात है। तो मैं आई एग्री विथ यू 100% कि प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेटर के पास नहीं होना चाहिए। वो जाना जरूर चाहिए, लेकिन उसके पास ये मैंडेट नहीं होना चाहिए कि वो प्राइस को कंफर्म करे या डिसएग्री करे। ये उसके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो उसके ऊपर काम करता है जो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस के अंदर फिर वो काम कर रहा होता है। तो मैं ये बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। Thank you, Shamsi Saab. Thank you for your comments. I think towards the ending of this webinar, मैं अलवी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो प्रीवियसली आपने जो प्लान जमा कराया था नेपरा के पास, उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स थी, वो इन्वेस्टमेंट सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो कुछ बता सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट कराची इज गोइंग टू बी लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, अपार्ट फ्रॉम जो हमने बातें डिस्कस की, लेकिन टेंजिबल फॉर्म के अंदर अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और इक्विपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। और
ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द सिचुएशन? Nothing, because the decision inshallah will be reversed. ठीक है जी, सो लेट्स नहीं होप नहीं फॉर। नहीं, मैं सॉरी सर, मैं ये आई थिंक यू द क्वेश्चन डिजर्व्स अ लॉन्गर आंसर। देखिए, मैं फिर से आपसे ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत मसला होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, क्योंकि हमारे तकरीबन एटलीस्ट 270 बिलियन रुपीस के लेंडर्स हैं, और उसके अंदर तकरीबन 90 बिलियन के फॉरेन लेंडर्स हैं। हबीब बैंक को तो शायद ये पता होगा कि अगर कराची में बिजली का बहरान हुआ तो क्या होगा, तो वो शायद हो सकता है थोड़ा चला लें। मगर अगर फॉर एग्जांपल आईसीबीसी बैंक बैठा हुआ है बीजिंग के अंदर, या अकरा बैंक बैठा हुआ है, या क्रेडिट सुई बैठा हुआ है, या ड्यूचे बैंक बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में जिनकी अब कोई प्रेजेंस नहीं है, और अगर ड्यूचे बैंक की है भी तो एक छोटी सी ब्रांच है, तो उनको इस बात की फर्क नहीं पड़ती। अगर उन्हें ये नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक के रेशियोज आर नॉट कंप्लायंट, तो वो अपना डेट पुल करेंगे, जिससे कि हमारे कैश फ्लो पे एक फर्दर स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसलिए अ, वो सिचुएशन खुदा न खास्ता काफ़ी ख़राब हो सकती है। और मेरी जो, मैं फिर से आपको कहूँगा कि जो मेरी कन्विक्शन है वो इसीलिए, देखें, या तो ना मैं या हमारी टीम के लोग ना बिल्कुल फेक बातें कर रहे हैं कि यानी ऐसा नहीं है, हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, हम डेट भी सर्विस कर सकेंगे, तो इसका मतलब है कि कई जो है ना वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है खुदा ना खास्ता, और ये सब कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के लोग ये समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर शब्बर जदी साहब ये बात कर रहे हैं, आप लोग ने जो जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक आई हैं, जिसमें कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट लगाई है, उन्होंने कहा है, सब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक को 80 से 90 अरब रुपए का लॉस होगा। तो ये कोई खुदा न खास्ता झूठ नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता फिक्शन नहीं है, दिस इज और रियलिटी। सो इसका मतलब है कि ये तो नहीं चल सकता, तो जब ये नहीं चल सकता तो आज या एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं ज़रूर ये जो कॉग्निजेंस है ये आएगी, और वहाँ बैठा जाएगा, और वहाँ ये समझा जाएगा कि अब क्या करना है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो रेगुलेटर है, शायद मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, और कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। तो मैं यही कहूँगा कि शायद हम उनको सही तरह समझा नहीं पाए, और अब जब हम उनको सही तरह समझाएंगे तो जो भी प्रोसेस है उसके तहत ये फैसला ऐसा होगा कि केई इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू बी सस्टेनेबल, एंड केई विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विस टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। हाँ, एक बात ज़रूर है जो हमने एक डैमेज किया है, कि पहले हम जब लेंडर से बात करते थे, और मैं फिर से ये कहूँगा कि हम हमारी कैपेक्स जो है ना वो पीएसडीपी से नहीं आता। हमारा कैपेक्स हम खुद अपने फंड से करते हैं, और उसको हम फाइनेंस करने के लिए डेट लेते हैं, और हम लेंडर को जाके ये समझाते हैं कि यार, अगर हमने केकेआई का ग्रिड लगाया है जिसकी तकरीबन कोई 30-40 अरब रुपए की कॉस्ट आई थी, तो इसका पेबैक जो है ना वो 5-7 साल नहीं हो सकता, हमें 18-19 साल का लोन चाहिए। तो जब हम उसको जाके ये समझाते थे, एंड आई होप मैं समझा पाऊँ, तो हम रेगुलेटर को एक रिप्रेजेंटेशन देते थे कि जो रेगुलेटर, देखिए, बहुत सारे रिस्क होते हैं, कंट्री रिस्क होता है, कमर्शियल रिस्क होता है, हमारी ऑपरेशनल रिस्क होता है, एनवायरमेंटल रिस्क होता है, एटमॉस्फेरिक रिस्क होता है, एक रिस्क होता है रेगुलेटरी रिस्क। तो हम रेगुलेटर को आज से पहले तक ये समझाते रहते कि जो रेगुलेटर है ना वो फैसले करता है बेस्ड ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जो कहता है कि प्रूडेंट कॉस्ट की रिकवरी होगी, एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है जो कहता है टाइमली डिटर्मिनेशन होगी, और वी विल कंटिन्यू टू हैव अ टैरिफ विच इज गुड इनफ, जिससे कि हम डेट वापस कर पाएंगे। आज मुझे एक सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा लेंडर को, कि यार, आपके रेगुलेटर ने लगभग 15 या 18 जुलाई को पुराने टैरिफ नोटिफाई किए थे, और 1.5 महीने में, यानी 23 सितंबर को उसने आपको हेयरिंग का नोटिस दिया, और 2.5 महीने में उसने उस टैरिफ को जिसकी बेसिस के ऊपर आप हमें बातें करते रहे वो तब्दील कर दिया, और उसको यानी फ्रॉम सस्टेनेबल टू एन अन। तो ये वाई, इफ आप भी अगर लैंडर की तरफ बैठे हुए ना, तो ये करेंगे, यार ये बताएं, ये दोबारा तो नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें शायद
इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा लोगों को कि यार ये हो गया है, इसकी जो भी मुहर्रिकात हैं, वी डोंट नो क्यों हुआ, बट होपफुली इंशाल्लाह इट इज़ अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल. इट कैन नॉट बी अ ट्रेडिंग इकोनॉमी, इट हैज़ टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. हमारी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलेशन 60% जो है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है. तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता सर, इसको ठीक होना पड़ेगा इंशाल्लाह. और आई एम श्योर जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर लुकिंग एट इट, एंड होपफुली. मैं फिर ये कहूँगा कि मेरा इस बात पे यकीन है, कन्विक्शन है, जितना इस बात पर है कि आज मैं आपके वेबिनार में हूँ और आज सैटरडे का दिन है, तो इतना ही यकीन है कि ये फैसला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक होगा. और वी विल डू द बेस्ट फॉर नॉट ओनली अपनी कंपनी के लिए, आप सब लोगों के लिए, एज अ सस्टेनेबल पावर सप्लायर to our licensed territory. राइट. थैंक यू अलवी साहब. जिशान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, बस फाइनल बस एक कमेंट कि यूनिफॉर्म टैरिफ रिजीम जो है ये बेस बनाकर उन्होंने जो दोबारा मिनिस्टर साहब ने ये नेपरा में ये रिवर्स करवाया है डिसीजन को, तो ये भी एक बेस कहीं ना कहीं बन रहा है. तो ये तो खत्म हो जाना चाहिए. ये बिल्कुल भी एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी के लिए तो वैसे ही अ, हाथ बांधने वाली बात है. और सेकेंडली मोने सलवे साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि वो उन्होंने हमें इतनी एश्योरेंस दी है. लेकिन फ्रैंकली इस डिसीजन के बाद हम तो काफी वरिड हैं कि इसमें जो खासतौर पर बिजनेसेस और इंडस्ट्री के जो, क्योंकि हमारा बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये टेक्निकल इश्यूज और क्वालिटी के इश्यूज, तो हमें तो यही लग रहा है कि इसके काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे. तो आई होप के मोनिस साहब जैसे कह रहे हैं उसी तरह से ये रिवर्स हो जाए और ये हमें फेस ना करना पड़े. इंशाल्लाह All right. इंशाल्लाह. Okay. Well, I think we're moving towards the close of the webinar. मैं closing comments के अंदर जो है, I would say कि ये एक जो है स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म नेपरा के एंड के ऊपर एक डिसीजन लिया गया है. आई वुड से कि इसके ऊपर एक ब्रॉडर लार्जर व्यू की रिक्वायरमेंट है. एंड आई थिंक somebody in the गवर्नमेंट echelons higher up needs to take notice. I think ये इतना बड़ा इशू है कि इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसके ऊपर देख लेना चाहिए, अवैस लगारी साहब को भी इसके ऊपर देख लेना चाहिए. समथिंग वेरी अनयूजुअल is happening, something which is not in any way looking like it's in the benefit of the country. ये जो एनर्जी का सेक्टर है ये महदूद नहीं है पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन से. इसके अंदर गवर्नमेंट हर एस्पेक्ट के अंदर डीपली इन्वॉल्व हुई हुई है और कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रही है, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट्स के हवाले से हो, पीएसओ की मोनोपोली, या वो गैस एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. एंड आई थिंक प्राइम इंस्टीट्यूट की तरफ से डेफिनेटली द एम्फेसिस दैट वी पुट ऑन मार्केट्स, the emphasis that we put on the market function to be able to manage demand supply through the pricing function, ये दिस इज व्हाट वी नीड. जब सीटीबी से आ रहा है और हमें प्राइसिंग फंक्शन को जो है मार्केट पे हम लेकर जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये कॉन्ट्ररी पॉलिसीज की कोई जगह नहीं रहती. वी डू नीड अ लार्जर विजन फॉर द एनर्जी सेक्टर. वी नीड टू बी एबल टू इनवाइट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान. इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है और बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी की तरफ पाकिस्तान की आवाम को भेजा जा रहा है. अभी आई डोंट थिंक कि जब तक ये टैरिफ्स इम्पोज होंगे, इंडस्ट्री के अंदर से जो रिस्पांस रिक्वायर्ड है वो शायद आ सकेगा. एंड बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट. हमने आज चेंबर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन से जो है इनके व्यूज सुने. सो यू नो, पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे गेटिंग इट. लेकिन गवर्नमेंट इज ऑलवेज मे बी प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ दोज पीपल जो प्रोडक्टिव इकॉनमी के अंदर उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते जिस तरह दूसरे किया करते हैं. विद दैट सेड, thank you all for joining us. Thank you for taking out the time on Saturday as well. I think आज we will be posting these discussions on social media. तो आपके साथ वो links share कर दिए जाएंगे through one form or the other. And please, hopefully, you know, the larger public and जो हमारे सर्कल्स हैं पॉलिसी के जो एनर्जी से रिलेटेड हैं उसके अंदर लोग इस डिस्कशन को देख पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इसकी न्यूएंसेस इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे. और होपफुली गवर्नमेंट के अंदर भी कोई बात हमारी सुन ही लेगा
वैसे तो इंशाल्लाह चांसेस इंशाल्लाह। पार्ट दैट आर जी लिमिटेड, क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठते हैं, सो वी डू नो कि जी गवर्नमेंट जो है वो कितनी तवज्जो दिया करती है और शायद इतनी तवज्जो नहीं दिया करती, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की नीड्स की तरफ। आई थिंक देयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिस टाइम पे हमें डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सोचना चाहिए, हम रिवर्स प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम श्योर वैस लगारी साहब की इसके अंदर रजा नहीं होगी और ना ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रजा होगी। तो जो कर रहा है उसको भी थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा नाम सैयद अली, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एट प्राइम। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए दिस इज ऑल। खुदा हाफिज जी।